and all. Hope you understand first unit and all peoples are making their PPTs regarding unit 1. Okay, everyone get notes. Sites are available there. Okay, sir. तो स्विच अपडेट कर लो तो भी हो जाएगा कुछ इसमें. Please unmute yourself. Okay. So that day we have seen some levels of goal plans and some strategic goals and strategic plans. Then we have seen some tactical goals, tactical plans, right? So you just continue this. Yes, after this lecture we have to do it. Just keep notebook or pad in front of you when lecture starts. So some words, some statements, okay? If you would like, then you just note down, yes, that is most important for me, or that words today learn from that lecture. So really you improve yourself. Operational goals and plans we have seen. So what kind of operational goals and operational plans are there? Next, we have seen planning time horizon, right? How we plan and how it's horizontal. So today, if any kind of short-term goals you have, just note down. Then after 1 year, you think about it. Yes, that year we just make some kind of plans. It will fulfill or not, right? So in management fundamental or fundamental of management or any organization or any management make goals or plan that particular tactic. They use all new tactics. Got it? So आप अगर कोई भी कंपनी का वेबसाइट देखोगे, उसमें उनका जो रिपोर्ट्स है ना, रिपोर्ट्स एनालिसिस में देखोगे, सो यू रियलाइज लाइक दैट कि जो प्रीवियस रिपोर्ट्स है और अभी का जो रिपोर्ट्स है उसमें डिफरेंस, बिकॉज वो एवरी ईयर कुछ तो भी नया यूज करते हैं. प्रेजेंटेशन स्किल्स उनका डिफरेंट होता है, वे ऑफ मेकिंग अलग होता है, न्यू न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहे हैं, उसका वो यूज कर रहे हैं. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, सो इट्स नॉट only for organization, it's for you, because you know everything made by man. Okay, everything. So man-made things, who handle well? Man only. So if you understand, if you are making anything, if you are make a plan, so you know that how you fulfill this, right? So work hard on it, and definitely after some days you will get fruitful reaction or fruitful results, right? After that, means and end chain. Okay, nowadays blockchain are too much famous everywhere. What it is? Anyone know about it? What is the meaning of blockchain? IT's definition different, operation and supply management definition different, and all finance definition is different. Yes, anyone? What is the meaning of blockchain? Come on. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yeah, so tell me now, why you take time? Just unmute yourself and speak up. What is blockchain? Yes. What it is actually? No one know blockchain? The meaning of blockchain? Yes or no? If you know, say yes. If you know, say not. How many people are here? Actually, ma'am, blockchain is a growing list of records. What kind of? That links together using cryptography. Anyone? Yes. You are working where? Where you are working? Sorry? Are you working anywhere? Yes, ma'am. Where? At Reliance Digital.
Okay, so that's why you say like that. This is blockchain. Okay, anyone? Ma'am, can you repeat the question? What is blockchain? The definition of blockchain. Do you know about it? What it is? Nowadays, it's too much famous everywhere. Yes, ma'am. I've heard some of things about blockchain. Okay. Ma'am, I'm first time hear this word blockchain. Okay. Anyone? Ma'am, your voice is not clear and your screen is also not visible. Yeah. Have you seen my PPT? How many of you seen No, PPT? not yet. Now? No, PPT is visible. No, ma'am, PPT is visible. Okay. It's just your voice is not audible properly. Okay. Okay, let me check. Okay, I will re-log in then. Okay, I will just stop my camera, so maybe you heard very well. Yeah, now I'm audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay, so I'll just skip my camera. So Hello, ma'am. Yashodan is here. yes, Yashodan. Madam, blockchain means a digital ledger where we keep our records. Yes. Yes, correct. Anyone? I'm Anurag here. Yes, Anurag. Ma'am, I think voice is breaking. Am I audible? Hello? Yes, Anurag. Yes, yes, you Yeah, are audible. I have some idea about blockchain because I have been working on it. So, hello. Yes, Anurag. So blockchain, you can say, is a kind of verification. Like if I am selling something, so computers will verify my transaction, like whether my name is right, whether my whatever information I have provided is right or wrong. And if they approve that information, the maximum is 71% computers approve that information, so my information is right, and rest. So we have adopt this blockchain technology in crypto mining or cryptocurrency. Everywhere. No, Every we have sectors. adopted in that. We Yes, can yes. adopt everywhere, Yes, but we have but adopted in that. Yes, absolutely right. Absolutely right. Yes, that answer I expected actually. Okay. Everyone is so that is the way. Means whatever you are doing now, you just nowadays we are in digital era. Everyone knows. So everything is verified. Okay, if your ledger, your name, everything. Okay, so we are coming in topic. So means end chain like that, the achievement of goal at how level permit the attainment of high level goal. Ma'am, So, your screen is not visible till now. yeah, how many of you not seen my screen? It is visible. I can see, ma'am. Hello. Hmm. Not visible, ma'am. And end chain slide is visible right now, ma'am. Yeah. Now? Ma'am, it is visible. Okay. Okay, I will re-log in then. Yeah. Sorry to interrupt. Network issue, I guess. Maybe. So, where we are, yeah, blockchain. So, if you have achieve anything ना, so you just circular it कि yes, एक goal जो आपको कहाँ से कहाँ तक and ले जाता है और and you just remember it कि yes, that time I achieve one goal, so that's why I'm here. So एक goal अगर आपने life में achieve कर लिया तो definitely एक goal finish हो गया कि दूसरा target, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते 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 हम सारे targets हमारी life क्या हो जाते हैं, survive कर लेते हैं, है ना? तो ऐसे ही achievement never end life में. Got it? If you are successfully passed in MBA and you get a good job, okay, in your hand, so after
that you decide ki yes, whatever you want, you achieve it. Yes, this one is foreign tour, everywhere you are, create your good identity in market. People know you very well. You are a very eminent person in the world. Everything you have achieved. Why? And because you are eager to learn, and you think like that ki yes, I want to do this, I want to, and people likes you automatically. People invite you, people need suggestions from you कि how possible है ना. Sometimes you ask me ना कि ma'am how, so create your own identity. But how it possible? If you fulfill your goals, you achieve your goals automatically, one by one, and after that you are a good person in the world and people contact you. And definitely if छोटा अगर हमने शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लिया ना, तो फिर ऑटोमेटिकली कितने भी स्ट्रगल्स, कितना भी फेस करना पड़े, हम ऑटोमेटिकली सारी चीजें, बट बी पॉजिटिव. Don't be frustrated, don't use that kind of word, always use positive words, always use positive words. So definitely you achieve your high goals, every goals you achieve. सो मैनेजमेंट हमने देखा इतनी कंपनीज है मार्केट में, टाटा, इन्फोसिस, लॉट्स ऑफ कंपनीज आई गई, बट कुछ कंपनीज ऐसी है जो सालों से चलती आ रही है. व्हाई? बिकॉज दे अचीव देयर गोल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग term, they satisfied their employees, they fulfill their every aspects. Okay, so that is the achievement, successful and everything ना. जैसे हम लोग ब्रांड पे बिलीव करते हैं, राइट, कि नहीं ये काफी सालों से है तो ब्रांड, हम कोई भी मार्केट में ऐसी चीज नहीं लेते. बीच में वो सब सारी चाइना वगैरह था, तो हम लोग अभी काफी मतलब सिस्टम देखते हैं कि कौन सा अच्छा है, किसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, राइट. सो ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जब ज्वाइन करते हो, मान लीजिए आपके पास अगर 10 कंपनीज का ऑफर आ गया, यू आर सिलेक्टेड फॉर ऑल 10 कंपनीज, बट आफ्टर दैट यू कंफ्यूज एंड आस्क कौन सी मुझे पैकेज में मत जाइए, है ना. तो वो भी हम देखते हैं, मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं. एंड देन यू ज्वाइन दिस कंपनी बिकॉज ऑफ लास्ट 20, 30, 40 years are working. And why? क्योंकि हर कंपनी का सिस्टम जो होता है ना, कनेक्ट टू पीपल, एक्सट्रीमली सॉरी, कनेक्ट टू पीपल, है ना, एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशंस एंड ऑल. सो दैट इज इफेक्टिव. And that's why we choose it, because they achieve every time goal. They make their employees to achieve their goal, their company's goal, right? So that is the achievement of goal. So now characteristics of effective goal settings. क्या characteristics होने चाहिए? What is the characteristics to set your effective goal? सिर्फ प्लान सोचिए मत, but you work on it. So what is the goal and characteristics like that? Specific and measurable. Every goal should be a specific and measurable. Measurable means time bounding. Got it? If you plan today ki yes, today I have prepared my PPTs and present tomorrow, there, that's it, you prepared and present, done, you achieve your, or you success your target. Got it? So specific and measurable, short and time bounding. Always time की value करो. Yes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Cover key results area. Always think, when you make a plan, that time you should think ki what is positive and what is negative thing. कभी भी सोचते समय दोनों वे से सोचिए कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा. इफ बोथ इम्पैक्ट्स अगर होते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा. गॉट इट? सो यू जस्ट थिंक अबाउट फ्यूचर एंड बैक एंड देन यू प्लान. गॉट इट? सो ऑल रिजल्ट्स एरिया आपका कवर होना है. मैनेजमेंट में कंपनी क्या सोचती है कि चलो नई कंपनी, पुरानी कंपनी जैसे टाटा है, टाटा ने क्या किया, नैनो लॉन्च किया था. एवरीवन नो ना नैनो, टाटा नैनो.
Yes or no? How many of you Tata Nano? Yes, everyone. Yes, Everyone? Yeah. So आप में से किसी ने चलाई है? नहीं? Yes, I have. Yeah. तो so that is good. ये था डिसीजन था टाटा का कि नहीं, मतलब उनका कहना यही था, मानना ये था कि गाड़ियों की जो प्राइस है वो बहुत हाई है, जो साधारण जो होता है ना मिडिल मैन, वो परचेस नहीं, तो क्यों ना हम ऐसी गाड़ी बनाए कि जिससे सारे लोग बाय कर सके एंड सबके जो विल है वो फुलफिल हो जाए. सो व्हेन आई वाज in 1450, I don't know, oh yeah, 13 14 or 14 15, in that time all companies, especially IT companies, Infosys and all big companies, they offer their employees a car, means they promoted, and after promoted they offer the cars to their employees, and it's too easy price ना, लाख या 1.5 लाख का कुछ प्राइस था उसका. Ma'am, हाँ, there is a story behind the manufacture this Nano. So when Ratan Tata travel in Pune, they saw one family ride in a Chetak scooter. The Yes. entire family, like the man is driving a bike, his wife sitting behind him, and two son is also sitting in that bike. So in Yes. that time, Ratan Tata thinks I have to manufacture one car for a middle class, so they can Yes. also travel in a car. Yes, correct. So मेरा कहने का मतलब यही है कि रिजल्ट्स, सॉरी, हाँ हम कहा थे नैनो में, सॉरी. तो कहने का मतलब यही है कि उन्होंने वो बनाया सबके लिए, है ना, तो उसका रिजल्ट सोच के बनाया, राइट, कि यस अगर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, है ना, तो इसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या होगा. उसे पता था कि उसकी कैपेसिटी क्या है, बट उसने वो गाड़ी जो बनाई वो किस हिसाब से बनाई कि ऑफिस टू घर या फिर सिटी टू सिटी, है ना. हाईवे पे वो गाड़ी नहीं चल सकती, बिकॉज हाईवे पे ऐसे वो ये होती थी स्पीड ये वगैरह, बहुत उसमें इश्यूज थे. बट लॉट ऑफ पीपल सेटिस्फाइड देयर विश कि यस आई बाय कार एंड आई हैव अ कार दैट टाइम, है ना. मतलब ठीक है, जिसकी भी कुछ विल है कि नहीं मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए और वो, तो वो सो कहने का यहाँ जो पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कवर की रिजल्ट एरिया. सो मैनेजमेंट जब होता है, मतलब टाटा ने जब वो डिसाइड किया था कि सारे के पास होना चाहिए, सो उसने जो प्रोडक्ट बनाया उस टाइम, तो उसका फ्यूचर इम्पैक्ट देख के, और स्पेशली मिडिल मैन के लिए, है ना, तो ऐसे थिंक करो. ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट गिव सम ना, कुछ तो देना है, कुछ तो करना है. लॉन्च करने में क्या जाता है, आज के डेट में तो कितनी सारी कंपनीज है, कितनी सारी चीजें हैं जो हम मतलब पास होते हैं, फेल होते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, राइट. आपने ये मूवी देखा है 3 इडियट ना, तो 3 इडियट में वो क्या होता है, जो एरोप्लेन बनाता है ना, जिसका वो क्या नाम होता है मुझे नहीं पता उसका, तो वो कितना जो प्रोफेसर होता है उसकी थिंकिंग को कितना निगेटिव ले लेता है, और निगेटिव में जाके वो सुसाइड कर लेता है. बट अगर वो पॉजिटिव लेता उस चीज को, कभी आपने ये सोचा है, हम लोग जब मूवी देखते हैं तो हम लोग ऑल एस्पेक्ट, कोई एंजॉय के हिसाब से देखता है, कोई सोचता है कि यार ऐसे ही बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई इमोशनली जाके देखता है, बट नहीं, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं स्टोरी को, तो आप सोचिए कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट उसने बनाया था, राइट, बट एक वर्ड ने उसे डिमोटिवेट कर दिया एंड उसने ऐसा स्टेप ले लिया. यस, Mahesh is mentioned something in inbox, chat box, and he give the name of that person Joy. oh Thank you, Mahesh. yes, yes, जॉय इज देयर. देखो इतना अच्छा नाम था उसका, जॉय, बट वो निगेटिव में जाके उसने क्या कर लिया, अपने आप अपना लाइफ स्पॉइल कर दिया. बट अगर हमें, और वो तो वे ऑफ थिंकिंग होता है, अगर आपके बड़े, आपके पेरेंट्स या समवन आपको अगर ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट,
सो यू डोंट डीमोटिवेट, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. अगर वो पॉजिटिव लेता तो आज वो कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना सकता था उस पे, है ना. सो एडमिन में एंड मैनेजमेंट में ये आपको फेस करना ही है. आपके बॉसेस, डीच करने वाले पीपल ऑलवेज अराउंड यू, they always demotivate you, they are always bombarding you, they always say like that you are not well, you don't have an ability to do it, but you just motivate their self. आपको सोचो कि ये मुझे उकसा रहा है, मतलब मुझे चैलेंज कर रहा है, आई विल शो यू. आप मुझे चैलेंज करिए. इस तरह से निगेटिव लॉट ऑफ पीपल, अभी आप ही देखिए, आप में से ही बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैडम लेक्चर अटेंड नहीं कर सकते, हम बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं रहता, ब्ला ब्ला ब्ला. ओह माय गॉड, इन दैट एज आप इस तरह से बातें करते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सिचुएशन में कितना अच्छी थी कि मैं तो इतना टाइम यूटिलाइज करती थी, तो आप तो करते ही नहीं हो. किसके पास काम नहीं है? सबके पास है, बट काम करने का तरीका आना चाहिए, है ना. करना है ना, मत बोलिए. हाँ, ऑलवेज यस. सुनने को मिल रहा है ना, सुनिए ना, मत बोलिए. जस्ट लिसन. यस, सम ऑफ पीपल आर देयर कि उन्हें नहीं मिल रहा है, तो इट्स ओके, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है. अच्छा ही नॉलेज मिल रहा है ना. ओके. चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक. ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ, बट फुलफिल करिए ऑलवेज. डे एवरी डे, यस आई एक्सेप्ट योर चैलेंज. चैलेंज अपने आप से चैलेंज करिए कि आज टुडे आई डिसाइड कि आई विल कंप्लीट दिस वर्क, मींस कंप्लीट. नहीं सोऊंगा आज रात भर. यू आर टू मच यंग पर्सन. आप एक दिन नहीं सोओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 2 घंटे की नींद ले लेंगे ना आप, तो भी आप फ्रेश हो जाओगे. डोंट गिव इंपॉर्टेंस इन स्लिप्स, राइट. बिल्कुल मत दीजिए. जस्ट वर्क हार्ड, और जो सोचते हो उसे करिए. सो चैलेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि आपको इतने सारे टास्क होते हैं, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, इतने सारे जो लोग बने हैं, टाटा, ये वो, ये कभी ये नहीं सोचते थे कि नहीं मुझे सोना है, बस किसी ने बोला. ऑलवेज बी रेडी, ऑलवेज. हर चीज के लिए करना है या नहीं करना है, क्यों नहीं आ रहा है, सोचो, ढूंढो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो. सो चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक. ऑलवेज रियलिटी में जियो, मत सोचो ज्यादा. बहुत सारे लोगों को सोचने की आदत होती है, थिंक थिंक थिंक, बट रिजल्ट 0. सो डोंट डू दिस. डिफाइन टाइम पीरियड. एवरी टाइम बी Madam, excuse me, पंक्चुअल. madam. Excuse me, madam. Sorry to interrupt. Please change the slide. Yes, characteristics of effective goal. Have you seen? No, means end No, chain. ma'am. End chain. Oh, okay. Yeah, we are here. Have you seen this? Yes, ma'am. No. First, we have seen specific and measurable goals, cover key results areas, challenging but realistic, and now define time period. So I would like to say ki always be punctual. Always be punctual. If you decide ki you wake up early in the morning, 5 o'clock, just wake up. Got it? If you decide ki yes, only 10 minutes I read, only 10 minutes you have read. 15 minutes for exercise, only 15 minutes for exercise. करके देखो, डू इट एंड रिजल्ट्स देखो. मेरा काम है आपको बताना, ठीक है. आप करेंगे, फॉलो करेंगे, तो फायदा किसका होने वाला है? आपका. सुधरने कौन वाले हो आप? डिसिप्लिन कौन बनोगे आप? आगे जाके एमिनेंट पर्सनालिटी कौन बनोगे आप? मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं. I don't expect, but I want like that कि yes, you follow these things. Everyone. तो आप अपने लाइफ के मत बनिए बड़ा आदमी, नहीं बनना है, बट whatever आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए लाइफ में कि yes, I enjoy my whole life. और जो डिसिप्लिन, पंक्चुअल एंड ऑल होता है तो वो तो अचीव करता ही है, नो इशू. सो लिंक टू रिवार्ड्स. ऑलवेज अप्रिशिएट करिए, ऑलवेज डोंट वरी ना. कभी आपने अपने आप को
इन फ्रंट ऑफ द मिरर बात किया है? कभी किया है? सुबह उठ के आप, जो भी लोग थोड़ा नर्वस या डिमोटिवेट रहते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग वेकअप हो जाइए और अपने आप को आईने में इंट्रोड्यूस करिए, हाय आई एम अजय, टुडे आई फील वेरी वेल एंड व्हाटएवर आई डिसाइड ना आई फुलफिल, आई चैलेंज यू। अपने आप को चैलेंज करिए, बोल के देखिए ऐसा, है ना? किसी ने कहा है कि वी ऑलवेज मिस अ पर्सन, हम अपने अंदर के पर्सन को ऑलवेज मिस करते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, वी हैव अ लॉट ऑफ गट्स। कोण आहे रे बाळा? बंद कर तुझं, अनम्यूट कर जरा. डिसिप्लिन माहिती नाही का लेक्चर अटेंड करताना? ओके, सो डू दिस एक्टिविटी एवरी डे. आप अपने आप को 8 दिन बाद इतना खुश, इतना एंजॉयिंग ऐसा देखोगे कि यस, अपने आप से बात करिए, अपने आप से ही डिसाइड करिए कि यस, उस पर्सन को देखिए जो आप में है, जो आप कर सकते हो, उसे उकसाइए. आपने क्या किया? उसे सुला के रखा है, आप बाहर की दुनिया देख रहे हो, मोबाइल ये वो, बस सोचते हो, करते हो. अपने आप से, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को पहचानिए. यस, आप में ये क्वालिटीज नहीं है, यस आई वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज, ये करना है, वो करना है, एंड अपने आप को, एंड टुडे आई विल डन, बस मुझे करना है. सो डेफिनेटली यू विल डू. और करने के बाद इफ यू अचीव एनीथिंग ना, अपनी पीठ थपथपाइए, अप्रिशिएट योर सेल्फ, एंजॉय करिए खुद को. खुद का टी बना के करिए या शैंपेन खोल के करिए कि यस, टुडे दिस इज फॉर मी बिकॉज आई कंप्लीटेड इट. मैम, यस, अजय गायकवाड़ हियर. एक्चुअली मैं रोज सुबह ऐसा ही करता हूँ. उठने के बाद सबसे पहले मिरर में देखता हूँ और मन में बोलता हूँ, आजचा दिवस तुझाच आहे अजय. बस गुड. आणि मी सकाळी 5 वाजता उठतो आणि रात्री 11 वाजता माझा दिवस संपवतो. आणि माझ्यावर इतक्या साऱ्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत की मला 5:30 वाजता लॉग इन करावं लागतं. माझ्या टीम मध्ये माझ्या अंडर 5 मुलं आहेत. ते म्हणतात 24 वर्षाच्या पुढची आहेत. प्लस त्यांना मला हँडल करायचं असतं. दुसरीकडे माझे जे ऑस्ट्रेलियाचे क्लायंट्स आहेत ते मला चॅट करून त्यांना हँडल करायचं असतं. मग सकाळी परत 5:30 ते 7 वाजेपर्यंत ह्या माझ्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी करतो, सगळ्यांना काम असाइन करतो. 7 वाजता मला परत लेक्चर्स अटेंड करायचे असतात, लॉग इन करायचं असतं झूमवर. त्याच्यानंतर मला 2 भयंकर आजार आहेत. त्या आजारांशी मला भांडण्यासाठी, फाईट करण्यासाठी मला रोज एक्सरसाइज करावी लागती. तर मग कधी कधी मग हे लेक्चर हेडफोन कानाला लावून मी 20 मिनिटं वॉकिंग, 10 मिनिट्स कार्डिओ अँड 20 मिनिट्स सायकलिंग करतो. अगेन कम बॅक टू होम. मी एक व्हाईट बोर्ड घेतलाय, त्या बोर्डावर मग 9 वाजता माझ्या मुलाचे लेक्चर सुरू होतात. ही इज इन फर्स्ट स्टँडर्ड. मग मी त्या बोर्डावर तिथं डेट लिहितो आणि त्याचं एंटायर शेड्यूल लिहून टाकतो. आणि मग त्याच्यानंतर परत ऑफिसमध्ये आता 2-3 नवीन मुलं जॉईन झालेली आहेत, त्यांना ट्रेनिंग द्यायची जबाबदारी माझी आहे. मग परत मी 11 वाजता, दुपारी 11 वाजता ते 11 ते 1 त्यांना ट्रेनिंग देतो. आणि मग नंतर मग परत मी अजून STI चे प्रिपरेशन करतो, प्लस आपलं MBA पण आहे. आणि मग ऑफिसचं काम तिकडे चालू असतं. तर Good. माझं Means overall you just make your plan and you follow it, right? Yes. So that's very good. Very आणि good. हे सगळं डोक्यात ठेवून मला करावं लागतं. Definitely. So that is the yes. Good. So actually, you know, Ajay, why you do everything, because you know why you doing it's all very good way, because you wake up morning and the morning energy is very good, you know. Hello. Yes. So and you just start your routine and you never skip it, because you know like that ki if any new responsibility assign you, you definitely adjust it and you definitely fulfill it. Got it? Sorry. Yes. So that routine you all follow definitely, but अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, बिकॉज यू हैव टू डू इट, ये करना ही है ना. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. या वेरी नाइस, थैंक यू अजय. ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स.
what it is actual. Company क्या करती है, traditional, how traditional objective they will say it. So we have seen lot of time in the pyramid, okay, top management, middle management, lower management, and other. So here are the employees. If we are seeing like that कि individual employees objective है ना, when first time you join any organization, so every employees, individual employees have an objective कि yes मैं ये करूंगा कंपनी के लिए, मैं ये काम में इतना ये टाइम दूंगा and all extremely sorry yeah. So एवरी एम्प्लॉइज का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. सो यहाँ पे डोंट वरी अबाउट क्वालिटी, जस्ट वर्क फास्ट. ओके, तो ये उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम काम स्टार्ट किया है. सो इंडिविजुअल एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव तब, ओके, डोंट वरी अबाउट क्वालिटी. क्वालिटी को company, so that time you just work and just work fast. स्पीड के साथ करने की कोशिश करिए कोई भी काम. Got it? So गलत हो रहा है क्या, just fast fast fast. Okay, so next डिपार्टमेंट मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव. जो भी आपके डिपार्टमेंट का मैनेजर्स रहेगा उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, इंक्रीज प्रॉफिट, है ना. वो यही सोचेगा कि मेरा प्रॉफिट आज कितना ज्यादा होगा. Hello, ma'am. Yes. Sorry Hello, to ma'am. interrupt. Ma'am, can we Please change the slide. Yes. Again, I have to. Yeah. Now you have seen Yes, ma'am. this pyramid traditional. Yes, Yes. So this is the first objective, individual employee objective here, and don't worry about quality. Just work fast. If you are a new in any organization, fresher, you don't have any experience about work, so that time you just work. Don't think about quality, just work fast. Okay. Next, if आपके डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, he just think about increase profit, how to improve profit, how to increase profit. He needs profit, just thinking about the profit, because every organization's on profit. जो डिवीजन मैनेजर रहेगा उस डिपार्टमेंट का, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, व्हाट इज द मोटो ऑफ डिवीजन मैनेजर्स, I want to see a significant improvement in this division profit. ना वो भी क्या सोचेगा, प्रॉफिट के लिए, बट सिग्निफिकेंट, एग्जैक्ट प्रॉफिट. गॉट इट? सो दैट इज द डिवीजन मैनेजर्स. एवरी सबके एस्पेक्ट, जैसे अगर आप जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने व्यूज, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स है, राइट. सो आप उसी को फॉलो करते हो एवरी डे. दैट इज. एंड टॉप मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वी नीड टू इम्प्रूव द कंपनीज परफॉर्मेंस. प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा होगा, राइट. सो दैट इज द ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग. मतलब कंपनी जो है, कोई भी कंपनी इस तरह से क्या करती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल सेट करती है इस वे के साथ, इस पिरामिड में. वो आपसे फ्रेशर से ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है क्या. हाँ, दे नीड वर्क, फास्ट प्रोडक्शन, और आपको वही करना है 1 साल 2 साल, देन आपका परफॉर्मेंस आपके सामने आएगा तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. सो ऑर्गेनाइजेशंस और एनी मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इस तरह से डिसाइड करते हैं. अगर आप भी किसी कंपनी के मैनेजर या मैनेजमेंट में होंगे तो आपको ये सब ट्रीज जो होते हैं ना, जो जो साइकिल होती है मैनेजमेंट की, वो आपको पता चलती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, सेक्रेटरी कौन है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लॉट ऑफ, इट्स अ बिग फैमिली. मैनेजमेंट, इट्स अ बिग फैमिली. Extremely sorry. Okay, so that is we'll share next slides. Everyone understand what I'm saying actually?
Now next, we have seen what is the management by objectives. Have you seen my slides? Management by objective? Yes or no? No. No. Now? No, ma'am. The slide has not been opened fully, ma'am. It's in a minimized version. Okay, 1 second. Now have you seen? Yes, ma'am. Yes. Visible now. Okay. Yes, Mahesh, you want to say something? On what topic, ma'am? Actually, you said na I was about to type. No, I didn't say anything. Oh, sorry, Anurag is still like that. Sorry. No, ma'am, I didn't speak anything. Okay. Hello? Yeah, okay. I just read message na. That's why. So have you seen the management by objectives? Yes. Yes, ma'am. सो नाउ अभी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये आप जो देख रहे हैं स्लाइड, इसे देख के क्या लग रहा है आपको कि एवरीवन इज मीट, समवन इज टॉकिंग, राइट, समवन इज थिंकिंग, है ना? जब आप भी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो तो वहां पे आपका जो बिहेव होता है, मीट टू पीपल, टॉक टू पीपल, कम्युनिकेट विद पीपल, बिहेव विद पीपल, इट्स डिफरेंट, राइट? सो व्हाट इज द like that? Okay, so definition, what is management by objective means what can be defined as a process whereby the employees and the superiors come together to identify common goals. Whatever means first day जिनका होता है ना organization में, so they just HR and your boss just call you and they telling their rules and regulations. You feel like very much better, something like that ki yes, we joined this company, all people are there, everyone support you, cooperate you, someone welcomes you. Okay, so but what is the purpose actually? They just want to fulfill a goal, है ना? So पहले दिन में just they speak about their organization, company क्या काम है, आपको क्या करना है, and whatever the assignment they just hand over to you कि yes, this is the work and you have to do it. So common goal, and common goal कौन fulfill करता है? कौन करता है? एम्प्लॉइज ना, कंपनी के एम्प्लॉइज ही कॉमन गोल को फुलफिल करेंगे, तभी तो कंपनी का परफॉर्मेंस गुड लेवल पे जाएगा, राइट? सो superiors come together to identify common goals. The employees set their goals to be achieved, the standard to be taken as the criteria for measurement of their performance and contribution, and inciting the course of action to be followed. ओके, ये आप सभी को पता है, मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, हम शुरू से मैनेजमेंट के फंक्शंस, मैनेजर्स एंड एवरीथिंग डिसाइड किया है, तो आपको ये पता है कि एक्चुअल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है और वो क्या फुलफिल करना चाहती है. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? ऑलवेज एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, ऑलवेज एक्सपेक्ट, they are expect from their employees, right? So extremely sorry.
So always fulfill organization goals. Now, have you seen second slide definition? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, management objective is a process of agreeing upon objectives within an organization so that management and employees agree to the objectives and understand what they are in organization, right? So if you are joining any organization and your boss and your superior assign any kind of work, so you feel like that ki, yes, I am able to that post and I fulfill my target or goal, whatever assigned my superior to me, and you are very dedicated and you solve or you give your 100%, or someone is very dedicated, someone is very down to earth to their work, so they fulfill all objectives their organizations, है ना? मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना 10 साल 20 साल से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं बिकॉज ऑफ देयर डेडिकेशंस, देयर ट्रस्ट, दे बिल्ड देयर ट्रस्ट, दे क्रिएट देयर ट्रस्ट, everything. So people, management also think like that, you know, he is a very trustable person, so I never left him. मतलब और बिहेव भी मैटर करता है. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आप पे पूरा बिहेव करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रियली ट्रस्ट ऑन यू, सो यू फील लाइक दैट कि नो, मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं ऑनेस्ट हूँ, ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ ऑनेस्ट है, सो व्हाई शुड आई लेफ्ट, राइट? सो आप नहीं छोड़ोगे कभी, एंड यू कंटिन्यू दिस ऑर्गेनाइजेशन. एंड second one is the term management by objective is like that was first popularized by Peter Drucker in his 1954 book The Practice of Management. It's available on Google PDF book, so you read it. Practice of, what is the practice of management, wrote by Peter Drucker. बहुत अच्छा. आप इनके थॉट्स भी पढ़ेंगे ना पीटर ड्रकर के रिगार्डिंग मैनेजमेंट एवरी डे. आप मैनेजमेंट पढ़ना चाह रहे हो ना, तो मैं आपको एक अच्छी हैबिट लगाना चाहूंगी कि एवरी मॉर्निंग जब आप उठते हो तो ऑलवेज एक कोई तो भी अच्छा पीटर ड्रकर का, इसके पहले हमने वो ये देखा था जीम्स है, बहुत सारे हैं, उनका भी आप ना फेडरिक ट्रेलर का मैनेजमेंट के थॉट्स पढ़िए, बहुत एनर्जी मिलती है. अपने स्टेटस पे रखिए ऐसे थॉट्स, अदर पीपल पढ़ेंगे तो उनको भी एनर्जी आएगी, है ना? तो हम लोग अभी नाउअडेज हम किसी को कुछ दे तो नहीं सकते, बट गुड थॉट्स वी हैव एंड वी जस्ट शेयर विद देम. एटलीस्ट कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, बट दे विल मोटिवेटेड इफ दे रियली, इफ दे आर लाइक टू रीड. सो नेक्स्ट, main concept. What is the main concept of management? Is the principle behind management by objective is to make sure that everybody within the organization has a clear understanding. Sorry. So प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट का वो लाइक दैट कि एनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लियर होता है. फर्स्ट इट इज एम, उस ऑर्गेनाइजेशन का एम ऑब्जेक्टिव, एंड सेकंड एज वेल एज अवेयरनेस ऑफ देयर ओन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अचीविंग देयर एम्स. ठीक है? इफ यू आर अ पेरेंट्स, है ना, अगर आप पेरेंट्स है तो आपको पता है कि आपका बच्चा है, उस बच्चे के लिए आपका एम क्या है ना, एंड उसके लिए व्हाट काइंड ऑफ टेक केयर यू शुड डू फॉर हिम और हर एनीवेयर. सो सेम मैनेजमेंट का भी फंक्शन है कि एम क्या है, अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट के लिए करना क्या है, इंटरेक्ट पीपल, वर्क एंड अचीव देयर गोल्स. एंड आपको अपने रोल, जैसे अभी अजय ने बताया, बाकी के भी लोग हैं यहाँ पे जो फुलफिल कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, राइट, एंड साथ ही में एमबीए भी कर रहे हैं,
So you hats off you guys, really means इतना सब कुछ करना means आप manage कर रहे हो, you know the manage things very well. मतलब इसे बिल्कुल stop मत करिए, right? Main concept. Next, what is the management by objectives and principles? So cascading of organizational vision, goals and objective. Always decide specific objectives for each member, है ना? All 5 ones are different, but हम ये 5 उंगलियों के बगैर कुछ नहीं कर सकते. कुछ करना है तो हमें 5 फिंगर्स चाहिए, है ना? कुछ पकड़ना है या कुछ काम करना है. अगर आप कभी रियलाइज कीजिए कि ये 5 में से अगर किसी फिंगर को कुछ हो जाता है तो यू आर अनस्टेबल, यू आर नॉट कंप्लीट योर वर्क, यू फील अनईजी. सेम फीचर्स यहाँ पे भी है कि अगर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे तो मेंबर्स के साथ, और सभी लोग अलग अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, एवरीवन हैव गुड स्किल्स, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, 2 लोग एक जैसे कभी नहीं होते, है ना? सो दैट इज एवरी मेंबर के साथ आपका इंटरेक्शन, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए. ऑलवेज अप्रिशिएट देम. यस, इफ यू आर अ मैनेजर एंड इफ योर कलीग और योर एम्प्लॉय डूइंग सम काइंड ऑफ मिस्टेक, सो यू जस्ट टेल हिम और हर कि नो, you have to do this way. Participative decision making. Okay, you just participate. एक second. Yes, so you just participate functions, meetings and share your decision with management. क्या लगता है आपको कि अगर बहुत बार वर्कलोड होता है तो मैनेजमेंट कहता है कि नहीं, मुझे आज ही चाहिए, आज ही होना चाहिए. सो यू हैव जस्ट शेयर. इफ यू आर वर्कलोडेड, if you don't have time, that time you just say like that कि no, it's not possible for me. Share करिए. Decisions sharing is most important, right? So explicit the time period. अपना टाइम जो है उस पे कॉन्सेंट्रेट करिए कि yes, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए कोई भी एक्टिविटी करने में या कोई भी काम करने में. गॉट इट? एक स्पेसिफिक टाइम में ही आपको सारी चीजें अलॉट की जाती है एंड यू हैव टू फुलफिल. एग्जाम्स टाइम, फॉर एग्जाम्पल, जब आप, अभी तो ऑनलाइन है बट ऑफलाइन में क्या करते थे, 3 आवर्स का पेपर 3 आवर्स में सॉल्व करते थे, है ना? उसके लिए आप प्रैक्टिस करते थे एवरी डे. You just practice to solve question papers and on the time of exam you solve all questions because of practice, right? So, and main is time bounding. You fulfill all questions on time, 3 hours time, 1 hour's time, whatever. So same process, same thing. आपको हर वक्त हर काम में प्रोसीड करना है. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक. एवरी टाइम आपके काम का आप खुद ही फीडबैक लीजिए कि यस, क्या मिस्टेक हुई है, क्या गलत हुआ है, आपका परफॉर्मेंस कैसा था, कितने टाइम में आपने फुलफिल किया है. जो रनर्स होते हैं ना, स्पोर्ट्स पर्सन्स, आपको पता है ना, स्पोर्ट्स पर्सन, दे फॉलो टाइम बिकॉज they are too much disciplined and they want to finish on time everything, right? Target, especially runners जो होते हैं वो बिल्कुल 3 सेकेंड 2 सेकेंड. स्विमर्स also, swimming is a very good, so we learn lot of things. Every sports is good. So परफॉर्मेंस अपना खुद का आप खुद डिसाइड किए, खुद जज बनिए खुद के. Got it? So that all the things we have seen, like that management by objectives and principles of management,
right? Anyone want to ask questions? So we'll continue tomorrow. Ma'am, this is Ajay Gaikwad. Yes. Question is not related to the our portion. Tomorrow is the last day of exam submission of examination form, correct? Yes. और अपने ये बैच में से कुछ बच्चों ने अब तक फॉर्म भरा नहीं है, उनको हाँ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, तो मैंने हाँ। मेरे इनसे कोशिश की है, लेकिन हाँ। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि कॉलेज की तरफ से उनको थोड़ा सपोर्ट मिला तो अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने वेद प्रकाश जी है, वो हाँ। बहुत दूर से ऑपरेट कर रहे हैं हाँ, और हाँ। वो अदर यूनिवर्सिटी से है, तो उनको थोड़ा दिक्कत आ रहा है फॉर्म भरने में। एक्चुअली उनके डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं हुए हैं ना अजय, मैं भी अच्छा। कांटेक्ट में हूँ, तो वो आप जिन जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट किए हैं, तो पहले वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, देन आपका एग्जाम फॉर्म फुलफिल होता है, राइट? तो उनका वही प्रॉब्लम है कि उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहा है, इसलिए उनके फॉर्म में एप्लीकेशन एरर आ रहा है। जो ओके भी ओके बच्चे हैं जिन्होंने भी उनके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, है ना, तो उनको ये माइंड में रखिए कि फर्स्ट यू हैव टू सबमिट योर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, देन यू हैव टू फुलफिल योर ऑल एग्जामिनेशन फॉर्म्स। बहुत सारे लोग हैं जिनको तकलीफ आ रही है, ऑनलाइन माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स है एंड ऑल, सो डू इट फास्ट। ओके 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 मैम। यस, गुड अजय, वेरी गुड, यू जस्ट कोऑपरेट टू ऑल ना, वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। Yes. Okay, then see you tomorrow. Bye bye. Take care. Bye, ma'am. Bye bye.